Good morning, sir. चैप्टर 4 बोर्ड्स अपना प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 कैरी द हाईएस्ट वेटेज। इसमें कुछ भी ओमिट नहीं है एक्सेप्ट फॉर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलिंग आउट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलिंग आउट Consequence of Kalinga. स्टार्ट करें। The Mauryan Empire. The Mauryan Empire was founded in the 4th century BC by Chandragupta Maurya. He organized a powerful army and laid the foundation of a vast empire. He overthrew Janandas and Magadha and the great satraps from the northwest frontier and unified a large part of Indian subcontinent under his centralized government. His successor, Bindusara, kept the Mauryan Empire intact and further extended its boundaries. The region of Bindusara's son, Ashoka, constitutes one of the brightest periods in the Indian history. After the Kalinga War, Ashoka devoted his life to human welfare. He considered his subjects as his children. He built many marvels in art and architecture, some of which have survived up to this day. Sources, literary sources. Asthashastra of अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। मालूम है ना कौटिल्य कौन है? चाणक्य। पता है ना चाणक्य कौन है? इसके बहुत से हमारे नाम. विष्णुगुप्ता अर्थ ना कौटिल्य। Now, Kautilya or Chanakya is considered as one of the most wittiest persons to have ever lived in Indian history. अगर वो नहीं होता मौर्यन एम्पायर की स्थापना हो ही नहीं सकती। ठीक है, it is due to his brilliance and mindset he trained Chandragupta Maurya to form one of the biggest empires in India. ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू when it comes to diplomacy बहुत ही सही है। आज भी मल्टीनेशनल कंपनीज में बैठे बैठे बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओस, बहुत सारे लोग चाणक्य नीति आज भी पढ़ते हैं because it teaches them how to deal with human beings and understand their mindsets. ताकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस डील हो सके रूम के अंदर so they can identify and understand through sheer observance on how the other person is going to react. ठीक है, तो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी सिखाता है। सब क्लियर है? आगे sources on the history of Mauryas. The most important source is the Arthashastra written by Kautilya, also known as Vishnugupta and Chanakya. He was the advisor and prime minister of Chandragupta. Arthashastra is written in Sanskrit. It is a comprehensive manual that deals comprehensive, detailed, deals with politics, rule of diplomacy, principles of administration, and other such political topics. This book was discovered in 1909 and its English translation is now available. Second, Indica. Megatherius important है structured question। क्या हुआ? was अरे फेल नहीं होता है फिर हम लोग में किए दिया A और B C है. कुछ भी चलेगा जो लिखा है एग्जाम सर ये एग्जाम में मैंने सी लगा था. बोला जो एग्जाम में लिखना है लिख सकता है, कुछ स्पेसिफिकली पूछ रहा है। दवाई नहीं खाया ना तू आज? इसने वही कर दिया था. सेम कॉन्सेप्ट था. सर भी अलग मेरे ज्योग्राफी में एरिया था क्या? मार दूंगा मैं तेरे। हिस्ट्री तो सेम ही है ना. the Greek ambassador at the court of Chandragupta Maurya. He was sent as an ambassador to the court by Seleucus Dictator. the Greek ruler. He wrote a book named Indica, which contains his impressions of what he heard and saw during his stay. So you have to understand कि इंडिया मेगा सीन में लिखा है, ठीक है? यानी कि this is a clear indication that the Mauryan Empire was in touch with the Greek
टेरिटरीज एंड किंग्स, यानी कि हम दोनों के रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग थे, इंडिया के और ग्रीस के. Okay? Megasthenes, the original indica has been lost. But its fragments Fragments, parts, still survive in the writing of later Greek authors like Strabo, Arian, and Diodorus. Megasthenes wrote the following account about what he saw in India. The occasion on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions. He is carried in a golden palanquin. palanquin. His guards ride. अरे एक्सेंट में क्यों बोल रहा है? palanquin नहीं बोल सकता तो पालकिन भी बोल सकता है. Palanquin. मालूम है ना पालकिन क्या है? तो ये उठती है ना, उसमें बैठता है वो किंग. His guards ride elephants. अरे लेकिन वो बैठ के आता तो क्या प्रॉब्लम है तेरे को? इंटरसेंट कर दिया पालकिन को तूने. Decorated with gold and silver. Some of the guards carry trees on which live birds, including लाइव बर्ड्स. a flock of trained. अब ये चीज है ना, अगर तुम विजुअलाइज करोगे तो बहुत वियर्ड लगेगा, तो उस वक्त के लिए वो चीज एकदम मैजिकल था, मम्मी एकदम पागल होते. So they used to carry those fake trees, और वो trees के अंदर trained parrots. When the king would step out to meet the people, the parrots will come out of the tree and flock around him. तो ऐसा लगेगा कि इसको किसी ने सर पे मारा है. कि तभी तोते उड़ते हैं. अगर कार्टून देखा है तो visually it looks very weird in this day and age, but उस वक्त के लिए लोगों को लगता था अरे मैंने कहीं पर भी ऐसा बोला नहीं मेरे को लेकिन मैंने ऐसा बोला कि वो टकला था. पेपा पिग देखता है वो. समझ गया था, इंसान था, इंसान कौन? अरे तो वही तो समझा रहा हूँ. अरे तो कार्टून अगर तुमने देखा रहेगा, हमने कभी देखा है? क्योंकि वैसा था, उनको मजा आता था. उन्होंने नहीं सोचा है, और अगर सोचा रहेगा तो यहाँ पर नहीं लिखा है. लेफ्ट में जा रहा है ये. Circle about the head of the emperor. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food. ये हर एक किंग के लिए होता है. एक सर्वेंट का काम होता है, तू खा देख पहले जहर की नहीं. ठीक है, आगे. He never sleeps in the same bedroom. यहाँ पर चाणक्य का इनसिक्योरिटी की. चाणक्य ने क्लियरली अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राजा के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन दीवारों के बाहर से नहीं, दीवारों के अंदर ही होता है. चाणक्य ने बोला, मुगलों ने इसको सीरियसली ले लिया. ठीक है, तो चाणक्य का ये थॉट प्रोसेस गलत नहीं है. What did he always believe? The true enemy of the king is not necessarily outside of the walls of the palace. There is a good chance that he might be amongst us. अगर कोई अगर बिक गया, कोई अगर रिश्वत ले लिया, किसी ने किंग का लोकेशन बता दिया, so he would not sleep at the same place. Okay. Archaeological sources. Edicts of Ashoka. Very important. An edict is a decree. Decree issued by a sovereign. माफ करके रखो उसको. Law. डिक्री का मीनिंग लॉ. देखो तुम लोग को ब्रीफ में कैसे पूछा जाएगा हिंदी का. एडिक्ट्स ऑफ अशोका, सांची स्तूपा, या फिर अर्थशास्त्र, सांची स्तूपा एंड क्या पढ़ रहा है? The edicts of Ashoka found the most important source of modern history. They are the oldest, best
preserve and preciously dated records of it. How will you determine whether a king is a good king or a great? Tell me the signs of a great king. One is looks. He is not selfish and he looks out for the welfare of his subjects. Care about मतलब वही उसकी तो बोला। architects building Structures. हाँ works. पत्थरों के पे लिखे गए टेक्स्ट। हाँ, और क्या? बस इतना ही। एग्जाम्पल्स दो और अच्छा वॉल्यूम अच्छा वॉरियर हो। एक्सपांशन। इतना बड़ा किंगडम उतना ग्रेट किंग। How he protects his people. टाइटल हाँ? टाइटल टाइटल? पूरा टैक्टिकल उसके लिए कमांडर्स होते हैं। बस और अच्छे कमांडर लगा मैंने इधर कुछ सुना था कि एक राजा था कोई जिसमें एक राजा होता है उसको हाँ पद्मावत में तो उसमें वो एक राजा रहता है उसको पता चल जाता कि एक क्या बोलते हैं, साधु बाबा उसे देख रहे हैं उसकी खिड़की से तो उसका वो इंटेलिजेंस का ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर वो अच्छा होना चाहिए। Explain here. दो वर्ड के लिए इतना तो कुछ अरे वो याद नहीं अभी से क्या है बोलो अकबर मानो। कौन बोला इंसान? तो क्या लग रहा है इधर सब लोगों को लगा कि कोई डिश का नाम दिया वो पहले दूध पड़ता सावर भी करता था नहीं करा लगती बेइज्जती हो औरंगजेब का बेटा अरे हाँ पर दो है वो बीरबल वाला मालूम है ना तुमको अकबर one of the greatest Mughal kings है तो yes pay attention लेकिन ऐसे अपने राजगद्दी पर बैठा होगा एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया उसको मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ मैं क्यों हूँ हाउ विल पीपल रिमेम्बर मी मेरे मरने के बाद मेरे चले जाने के बाद ये सारे क्वेश्चंस उसको हॉल्ट करने लगे तो उसने आदेश दे दिया कि पूरे के पूरे टेरिटरी में से जो सबसे बेस्ट ऑथर है राइटर है उसको बुलाओ मेरे सामने राइटर उसके सामने खड़ा कर दिया गया अकबर ने उसको बोला कि तू मेरे ऊपर किताब लिखेगा किताब के पार्ट होंगे पार्ट 1 में तुम उस पर्टिकुलर पार्ट में सिर्फ और सिर्फ मुगल डायनेस्टी का ट्री लिखोगे यानी कि पहला कौन उसके बाद कौन उसका बेटा कौन उसका बेटा कौन और कुछ पन्ने छोड़ देना फॉर फ्यूचर रेफरेंस सेकेंड पार्ट में यू विल राइट अबाउट कौन से किंग के टाइम पर कौन से मिनिस्टर ने उसको साथ दिया और उस मिनिस्टर का पोजीशन थर्ड पार्ट you will write about Mughal administration under different ये सबके इसमें काम करने का तरीका पॉलिसीज कैसा फोर्थ पार्ट you will write about भगवद गीता अकबर हिंदू था why is he writing भगवद गीता inside his book लोगों के उसके सामने सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे भगवत गीता को जिसको प्रेम करते हैं प्रेम करने के लिए जिंदा नहीं रहते तो मतलब ऐसे दिखाने के लिए वो मुस्लिम है फिर भी वो हिंदू होली बुक के बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं तुम लोग जानने के इंग्लिश पढ़ते हो ना क्या पढ़ रहे हो तुम लोग देसी पढ़ रहे हो भी नहीं पढ़ रहे सर अभी तो लैंग्वेज चल रहा है। अरे वैसे तो कितने चैप्टर है अरे मैं मार दूंगा उन्होंने देखो Oliver wants more. Oliver wants more. Ask one more. और है ना देसी के लोग हैं तुम लोग का जब एक्ट 1
या सीन खत्म होता है उसके एंड में शेक्सपियर एक वर्ड लिखता है एक्सुएंट। एक्सुएंट इधर लिखा है। Pay attention. Exuberant is not an English word. It means exit. अब ध्यान दो, शेक्सपियर ब्रिटिश राइटर है, प्ले राइटर, ठीक है, और वो क्लासिकल इंग्लिश में तो लिखता ही है, बट अचानक लिखते लिखते उसको भूत चढ़ जाता है, तो वो स्पेनिश वर्ड घुसेड़ देता है, कभी फ्रेंच वर्ड घुसेड़ देता है, ठीक है। लोग एजेंसी में भी हुआ रहेगा, सडनली विल बी लाइक फ्रेंच वर्ड डाल दिया बीच में, इटालियन वर्ड आ जाएगा बीच में। ये उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब इमेजिन करो कि तुम लोग एक इंग्लिश मूवी देखे, तो तुम लोग को बिल्कुल इंग्लिश नहीं है, बट हम लोग देख रहे हैं मजा, इवन दो वी डोंट अंडरस्टैंड, एंड देन सडनली व्हेन यू आर वाचिंग द मूवी, अचानक एक ऐसा सीन आता जब एक आदमी आता है, एक रैंडम हिंदी डायलॉग मार के जाता, सो यू विल लाइक माँ सब हिंदी, क्या डायरेक्टर है रे, वो हिंदी आता है, उससे पूरा एक डायलॉग डाल दिया यहाँ पे, समझ में आया। अब कोई दुनिया के किसी कोने में बैठा एक इटालियन बिस्ट्रो कैफे में जेसी पढ़ रहा होगा, suddenly comes across an Italian, like माँ कसम शेक्सपियर को इटली आता है, he knows how to speak in Italian, क्या राइटर है भाई। अभी अकबर ने अपना मुगल राज किधर बना के रखा, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन है, अरे तो गीता के बारे में नहीं लिखेगा तो कोई बुक उठाएगा क्या, तो ये मार्केटिंग टैक्टिक है ना। लेकिन मुस्लिम रूलर ने भगवत गीता के बारे में लिखा, भाई क्या लिखा पढ़ते, समझ में आया। उसके फोर्थ पार्ट में ही रोट अबाउट हिज इंप्रेशंस अबाउट द भगवत गीता, और एक दिन से दो निशान मारा, लोगों दिखाने लगा बड़ा अच्छा लेजिंग कर सको। और पांचवा पार्ट उसने बोला मेरे कहे गए अच्छे शब्द, कोट्स बाय अकबर, लिख। मैंने पूरा का पूरा पांच पार्ट उतार डाला, उसके बाद अकबर को दिया पांच पढ़ो, मैंने पूरा का पूरा पेजेस फ्लिप किया, मजा आया, क्या लिखा है, वो बहुत पैसे दिए, ठीक है। उसके बाद में उसने बोला एक और बुक लिखना दिया, और if you ever read the book any Akbari, which is the name of the book, तुम लोग जब पढ़ेगा ना तो तुम लोग ना अच्छी में सरप्राइज हो जाएगा। You read the book and you'll be like, माँ कसम ये आदमी से गलती होती ही नहीं है, ये इतना परफेक्ट इंसान है कि ये बताता ही नहीं कि इसने कभी मिस्टेक किया, इसने जो भी चीज किया सब मस्त गया, ऐसा होता है। Are you so perfect that you will never make a mistake? But according to any Akbar, Akbar is a perfect king. उस आदमी से कभी गलती हुई नहीं है, वो क्या गलती उससे, चलो मेरे को बताओ क्या गलती की उसने, अकबर नहीं, उसका मिस्टेक क्या था, कुछ मुस्लिम भाषा कभी लिखा ही नहीं है। कहीं पर भी जाओ तुम लोग नहीं लिखोगे, देखोगे ही नहीं तुम लोग कि अकबर ने कुछ गलत किया है, वो तो पर्सनल ओपिनियन हो गया। अरे यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द गुड किंग एंड द ग्रेट किंग। अशोक जब कलिंगा के ऊपर अटैक किया, तो मालूम है कलिंगा किधर है, किधर है, पर कलिंगा ये बोला
गोदावरी गोदावरी के पास गोदावरी और महानदी के पास। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है। Where is the state of Andhra Pradesh? Back in those years, Orissa. मेरा नेटिव टाउन। तो मैं बचपन से कलिंगा की कहानी सुनता रहा। So let me share something which your teachers would have no idea. कलिंगा वो टेरिटरी है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने जब कैप्चर किया था, थोड़ा सा पार्ट, नॉट इन इट्स एंटायरिटी। उसके बाद बिंदुसरा के कंट्रोल में आया। उसके बाद बिंदुसरा के कंट्रोल से हटने के बाद जब नंदास के साथ लड़ रहे थे ना मौर्यन एम्पायर, तो नंदास से लड़कर अपना रूल तुड़वा कर कलिंगा फॉर्म। और ये कलिंगा एक राजा नहीं थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंगा को रिक्लेम करने का ट्राई किया, उससे नहीं। जब बिंदुसारा ने कोशिश किया तो उससे भी। बोथ ऑफ द स्कीम्स लॉस्ट। अब आया वो जब अशोक राजगद्दी पर आए के रूल के 9 years later chose to attack Kalinga. Now those 9 years before that, 9 साल के पहले, 9 साल के ड्यूरेशन में अशोक ने एक भी जमीन इंडिया में नहीं छोड़ी, उसके राज में नहीं। पूरा का पूरा इंडिया कम के अंडर अशोक, एक्सेप्ट फॉर वन टेरिटरी। तुम लोग एक चीज मालूम होना चाहिए कि जब भी वॉरफेयर और बैटल होता, किंग्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द वॉर। अगर किंग टपक गया ना, हो गया लोचा फिर तो उसके वॉर्स हमेशा उसके वॉर जनरल्स लड़ते। You have to take this into consideration that Ashoka chose to fight in this war. इसका मतलब वो बैटल फील्ड में। इसका ये भी मतलब है कि ये जो एजेंडा है ये पर्सनल है। He in his mindset is all about कि जो काम मेरे प्रेडेसेसर्स नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। I will be the king to capture Kalinga. After a brutal warfare, 1 लाख से 1.5 लाख लोग तो बस मारे गए थे। अब 1.5 से 3 लाख तो सिर्फ इंजर हुए। One of the most bloodiest battles fought in the history. We have to take this into consideration कि जब अशोका ने कलिंगा कैप्चर किया, फिलोमीनस को हरा, everyone around him is celebrating except for Ashoka himself. Ashoka is the only one who's not celebrating and he's looking around. Then he has this realization, is like, my God, what have I done? उसको existential crisis तो तभी हो गया कि ये मैंने क्या कर लिया, मेरे के सेल्फिशनेस से मैंने इतने सारे लोगों की जान कुर्बान कर दी। किस चीज के लिए? एक जमीन के लिए। क्या मेरे पास पहले से जमीन की कमी थी? मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं यहाँ पर आया, मैंने जमीन और कितने जन की जान ले ली मैंने। Is this what the future? Is this what my future will be? Is this how people will remember me in history? तो हम लोग के वो उड़ीसा में वो कहावत है कि उनका राजा जीत तो गया लेकिन उनका राजा कभी वापस गया ही नहीं, तो राजा कहीं खो गया। क्योंकि जो किंग वापस गया वो अशोका था ही नहीं, वो पुतला था। So in the sense when Kalinga did lose the war, but they also lost their king. That is what the context goes. कि जब वो वापस गया, he was never the same person. बदल गया एकदम से। ठीक है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, हंटिंग जाना छोड़ दिया, मीट खाना बंद कर दिया, वॉरफेयर का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आपने शपथ ले लिया कि मैं आज के बाद कभी खून खराबा मैं करूंगा ही नहीं। तो ये सारे चीज के बीच में जब भी ये सारे questions were arising in his head and he was unable to find the answer, he found those answers in Buddhism. So he chose to follow the path of Buddhism and this is where he turned over a new leaf. Ashoka
is the only king in Indian history जिसने अपने अचीवमेंट्स के बारे में एडिक्ट्स में तो लिखे, लेकिन उसने अपने फेलियर्स के बारे में भी मेंशन कि मेरे से ये मिस्टेक्स हुए हैं। मेरा अचीवमेंट्स तुम लोग पढ़ लो जो मैंने किया, but you should also be able to understand where I failed as a king. That is a true definition of what a great king is, because a great king accepts that he is just another human being and human beings can make mistakes. अब तुम लोग पूरा का पूरा मुगल पढ़ेगा ना, तुमको कहीं पर फ्लॉ दिखेगा ही। जितने भी बुक पढ़ोगे ना तुम लोग इनके बारे में, सब में खाली तारीफ ही तारीफ। तो ये लोग इतने परफेक्ट बोलते नियर परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स थे क्या? इनसे कभी गलती नहीं हुई? ऐसा पॉसिबल है क्या? समझ में आया? These edicts are inscribed on the rocks and pillars throughout the country and include 14 major हाँ करना उसको 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर एडिक्ट्स, क्या क्या है वो? 7 pillar edicts and number of minor rock edicts. The inscription on this edict provide a useful insight into the life and ideas of Ashoka in particular and about the history of the Mauryas in general, except those at Shabasri and Mansehra, which are inscribed in the Kharoshthi script. Kharoshthi It script, starts from right to left. running like Arabic from right to left. The rest are the engraved in the Brahmi Lipi, written from left to right. The most important event of Ashoka's reign was the conquest of Kalinga. The Indescribable suffering and Atrocities. क्या atrocities, violence, देखना पढ़ना आगे सिंपल है। after Kalinga War deeply touched Ashoka's consequence and conscience, belief, conscience, and he made a solemn resolve to take up solemn, firm, resolve, decision. to take up arms anymore. Arms मतलब weapons. The war drum was silenced forever, and henceforth were heard only the echoes of Dhammagosha, the call to non-violence and universal peace. तो मतलब मेरी कुछ basically अगर बजा kingdom के अंदर, that means it is a call for war. But that changed after Kalinga, because कभी भी अगर वो बजेगा war drum, it is not for a call for war, but it is for peace. In pursuance of his policy of non-violence, Ashoka prohibited killing of animals for sacrifice. बट वो सबको रोक तो नहीं सकता था ना कि मीट मत कंज्यूम करो, तो उसने क्या किया, अपने राज्य में लिमिट कर दी कि इस दिन में इतने ही मीट कटेंगे, जिसको मिला उसको मिला, जिसको नहीं मिला they won't be able to consume meat. Clear? और सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया. Advocated restraint in the number that had to be killed from consumption, protected some of the animals, and in general condemned cruel acts against animals. Condemned, criticized. A reference to protection of animals is made in the rock edict I-1, which states formerly in the great refectory and temple of the heaven below kings Piyadasi. daily were many hundred thousand animals sacrificed for the sake of meat food. So even at this day, while this religious edict is under promulgation from the sacrifice, Promulgation मतलब in effect. मतलब कुछ हार्म नहीं हो रहा. नहीं, जब तक ये चीज चल रहा है which is in effect, सबको मीट मिलेगा बट लिमिटेड में ही मिलेगा, क्योंकि डेली 100 से 1000 कटते थे, लेकिन जब तक ये चीज इफेक्ट में है उतने नहीं मरेंगे.
from the sacrifice of animals for the sake of food. Some two are killed or one is killed. But now the joyful Chorus. chorus resounds again and again that henceforward not a single animal shall be put to death, as translated by James Prince. Third, second, Sanchez Suppa. Very important, stupa is a dome-like structure. By the semi-spherical, solid ये dome-like structure. अशोका ने डिसाइड करके बोला था कि लेकिन सडनली बचा है कौन सा था? इंडिया के बाहर, उसके बाद आया ना? उसके इंडिया के बाहर और इंडिया आए ना? So they came ना? That was when the empire got weakened. Military उनका फोकस था ही नहीं उसके बाद. डायरेक्टली अटैक कर दे। हाँ, मतलब था उनके पास weapons, but they did not focus that much on it. So it disappeared. We came to an end. नहीं, धीरे धीरे करके ले लिया. फिर इंडिया में के अंदर भी अलग अलग टेरिटरी से किंग्स आए ना. पुराने पुराने किंग के एक्सटेंडेड रिलेटिव्स की लाइफ हम बदला लेंगे, हम वापस से अपनी जमीन पे क्लेम करेंगे. चाणक्य की तरफ हमें क्या मौर्यन एम्पायर के अपना चंद्रगुप्त के टाइम पे था, अशोक के टाइम पे थोड़ी था. वो चलेगा. A stupa is a semi-spherical solid dome-like structure made of unburnt bricks and stone. The Buddhist stupa has special significance. It represents the spiritual body of Buddha, containing his relics such as hair, teeth, or bones. A cascade containing these relics is placed at the base of the dome. The foundation of Sanchi Stupa was laid by Ashoka at Sanchi, about 45 kilometers from Bhopal in Madhya Pradesh. There are 4 gateways in 4 directions. They have carved panels depicting events from the life of Buddha and some tales from Jataka stories. Chataka. Buddha is represented by symbols like the peepal tree, lotus, or wheel. The pillars are sword-mounted by capitals which contain sculptures of lions. The most important of this capital is the lion capital, a sculpture showing 4 Asiatic lions standing back to back on an elaborate way that includes the animals. It was officially adopted as the emblem of India in 1950. The Mauryan Empire, Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was the founder of the Mauryan Empire. Not much is known about his childhood. According to a legend, he had been dismissed from the service of Nandas, who ruled before him. He met Kautilya and Takshila. Kautilya, who later became famous as Chanakya, was the son of a Brahmin. Kautilya, too, was wronged by the Nandas. He therefore joined hands with Chandragupta to destroy the Nanda dynasty. After a long series of battles with Chandragupta, the Nanda capital at Pataliputra fell. This led to the emergence of a new dynasty, the Mauryan dynasty, with Chandragupta Maurya as the emperor. Alexander the Great ruler had conquered many stories in the northwest part of India. काबुल, कंदाहार, ठीक है, बेसिकली अफगानिस्तान वाला जो region. After his death, his territories in the Indian subcontinent were taken over by Chandragupta Maurya. With the help of Chanakya, has embarked on the consolidation process of his empire. In 305 BC, India was again attacked by Seleucus. वो हार गया. उसके बाद सेल्यूकस जब हारा तो उसने अपनी डॉटर एलिन को चंद्रगुप्त मौर्य को ऑफर किया एज अ पार्ट ऑफ मैरिज अलायंस व्हिच फर्दर स्ट्रेंथेंड द रिलेशंस बिटवीन द मौर्यंस एंड वॉर हो रहा है तो का मतलब कि वो ये आर्मी खत्म हो गई और किंग ही मर गया. वॉर मतलब अभी वो डिप्लोमेटिकली भी एंड हो गया. यहाँ पर सामने वाला किंग आदेश दे देता कि मतलब सरेंडर. यस सरेंडर तो किंग पर हाँ तो उनको तो दे देना. सरेंडर करने के बाद मार दिया. Possibility, but it completely destroys the honor at the court. So, नहीं हो पाएगा.
मैंने बोला पर देखेंगे भी तो खुद के टेरिटरी मिल जाएगा तो उसके बाद क्या ही फर्क है, उसका पावर और पोजीशन और अथॉरिटी तो है। मतलब बहुत शांत होकर जो उसके बाद में नहीं आपको कहाँ वॉर करेंगे, स्टेडियम ला क्या कभी नीचे लड़ेंगे हम लोग, लेके मारेंगे। मशाल लेकर आता है। कैसा लड़ेगा रात को, प्रेजेंट टाइम में भी रात को वॉर नहीं लड़ते, नहीं बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। अरे ये टेरर अटैक्स तो और कम attack सर करता है। बॉम्ब थ्रेट आया, हाँ थ्रेट आया, एसवीएस खांडीवली में बॉम्ब थ्रेट आया। बॉम्ब थ्रेट एसवीएस स्कूल में, थ्रेट मिला था, इसकी वजह से स्कूल को जल्दी छुटा दिया, स्टूडेंट को निकाल दिया। सब लोग पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड कल ही हुआ, कल MICM पे मैसेज भी आया। हाँ लगेगा फेक है। फेक है। आपको पता हमारे स्कूल का जो था ना, लीगल आज के लोग उसको मोड़ते थे वो छोड़ो ना। दिया था। उसके बाद गोपाल किया, उसके बाद अभी जैसे तो पेन सर, आपको पता है स्कूल का टर्फ ना थोड़े इसलिए सारे बच्चों को हम लोग को मार पड़ा हम लोग को टर्फ में डाल दिया और मैं उसको ऐसा ताना मारी है। सोचो 70 लोग एक तरफ पे खेल रहे है हैं, 70 लोग एक तरफ पे कुछ भी कर रहे हैं। कोई तो बॉल वॉल एक के बाद बॉल है सब मार पला और मैं और कौन पर नहीं बात वालों को अब छोड़ के नहीं कर बाबू ने आधा आधा काट हुआ है तो चाकू एक में ऐसा काट काट रहे थे। तो ऐसा और वो पहले से मेरे बच्चे बचाएंगे अकेले से बच्चे बचाएंगे बट वो तो ये सब बच्चे खेल को क्यों रहे, तो उसको इलीगल साइड एक साइड अरे मैं बोली ना बच्चे बचाएंगे बच्चे बचाएंगे बच्चे का बचाएंगे अब भागते गोब्लिन सेक्शन का नाम करो उसको, defeated Seleucus. According to the treaty signed with Seleucus, Chandragupta got Kabul, Kandahar, Herat, and Balochistan from the Greek commander Seleucus gave his daughter Helen in marriage to Chandragupta. After this victory, Chandragupta appointed Pushyagupta as the governor of his northwestern province. He then proceeded to the south and captured some territories there. Chandragupta's empire extended from Kabul and Kandahar in the northwest to Masuri in the south, and Bengal in the east to Saurashtra सौराष्ट्र in the west. According to the Jain tradition, after ruling for 24 years, he renounced the world. He handed over the kingdom to his son, Bindusara. So Bindusara succeeded his father, Chandragupta. सर चंद्रगुप्ता जी था तो फिर अशोक ने बुद्धिज्म क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म के आंसर जो मिलते हैं वो एग्जैक्ट मतलब थोड़े से सेम है ना, एग्जैक्ट थोड़े से सेम but he found reflection in the ideology of Buddhism. Reflection था नहीं, सर शेक्सपियर को स्पेनिश और इटालियन के साथ वो थोड़े बहुत वर्ड्स आते कोई भाषा नहीं है। उसका लिटरेचर और राइटिंग पैटर्न के लिए तो तुम लोग पढ़ लो ना, कंप्लीट हुआ कि नहीं, आप पढ़ना। The Greek historian Ethanacus called his he conquered Slayer of many hosts, killer of enemies, एनिमीज enemies and events नहीं, वही बोला चलेगा सर कौन बोला 35 इंग्लिश का इंग्लिश का भी लेक्चर ले लो, सबका लेक्चर भी कर ले, आपकी रात को चल रही है।
बस सर ही देंगे नहीं, आपके सर में